human civilization. We become a civilized person by taking knowledge and understanding power. And from where this understanding powers comes from, this understanding power comes from our thinking power, from our mind, from our thinking process. But this understanding power comes from education also. So education plays a very important role in everybody's life, and it has the great and miracle power to change anybody's life at every moment of the life. You can change your life by adopting deep education, by adopting deep knowledge. And education is the means of getting deep knowledge. That's why education is the most important thing in everybody's life. So here I am going to tell you the importance of games and education in a person's life. I am going to explain a paragraph whose title is Importance of Games and Education. So try to understand so that you can understand the value of games and you can also understand the value of education. आप जानते कि ये जो हमारी लाइफ है, ये लाइफ ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और इस लाइफ को बनाने में जिस चीज की इंपॉर्टेंस है वो है हमारी हेल्थ. और हमारी हेल्थ अच्छी हो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, अच्छी आदतें रखें, अच्छा डिसिप्लिन रखें और अपनी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए अच्छी एक्सरसाइज करें या अच्छे गेम्स जिनसे कुछ एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली हो जाती है, ऐसे गेम्स को खेलें. तो गेम्स का अपना इम्पोर्टेंस है, गेम्स की अपनी इम्पोर्टेंस है, और स्टूडेंट्स की लाइफ में तो गेम्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स जिम में जाके अपने टाइम को वर्कआउट में स्पेंड करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता और उन्हें इतना करना भी नहीं चाहिए. स्टूडेंट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बढ़ती उम्र में, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं गेम्स, क्योंकि गेम्स ऐसी चीज़ है जिनको यूज़ में लेने से, जिनको अपनाने से हमारे मन को खुशी और शांति मिलती है और साथ में हमारा फिजिक, बॉडी और हेल्थ, ये सब कुछ अच्छा होता है. तो गेम्स का और एजुकेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है हर किसी की लाइफ में, और बच्चों की लाइफ में तो बहुत ज़्यादा महत्व है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड एजुकेशन. The aim of education is to enable the human personality to grow to its full stature. Man has a body, a mind, and a spirit. Accordingly, education aims at the physical, the intellectual, and the spiritual and moral development of man. Games are a means of keeping the body healthy and fit. Physical fitness and freedom from all kinds of ailments are the desire and ambition of every human being. Indeed, good health is the first condition of happiness in life. Those who play games generally maintain good health. Games are an excellent means of bodily exercise, whether it is sophisticated games like hockey, football, and tennis, or simpler games like kabaddi. They all provide the much needed exercise to the body and thus keep the body healthy and strong. Players always have a better appetite and a better digestion than those who play no games or take no exercise. Games not only make the body healthy and strong, they also make it muscular. Apart from building the body, games are an excellent recreation or pastime. Education teaches people the need and value of recreational activities. Education does not approve of the bookworm who is lost in books all the time. Recreation is necessary, and games are among the most interesting recreations in the world.
The essence of recreation is that it refreshes both body and mind and provides a means of escape from one's professional or scholarly pursuits. Thus, games are very useful as a diversion for the mind. Let's try to understand this paragraph in Hindi language also. The aim of education is to enable the human personality to grow to its full stature. एजुकेशन का जो एम है, शिक्षा का जो उद्देश्य है, उद्देश्य, एजुकेशन का जो एम है वो है कि एक ह्यूमन जो पर्सनैलिटी होती है, मानव व्यक्तित्व को उसकी फुल आकार और आकृति प्रदान करना या उसकी फुल आकार और आकृति प्रदान करने की काबिल बनाना एजुकेशन का एम होता है। मैन हैज अ बॉडी, अ माइंड एंड द स्पिरिट। मनुष्य के अंदर क्या है? शरीर है, बॉडी है, माइंड है जिसका उपयोग वो अपने बौद्धिक कार्यों के लिए या फिर अपने सोचने विचारने के लिए करता है, एंड अ स्पिरिट, और एक स्पिरिट है, एक भावना है, एक फीलिंग है। अकॉर्डिंगली एजुकेशन एम्स एट द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एंड द स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ मैन। इसी प्रकार जो एजुकेशन है, एजुकेशन क्या करता है? एजुकेशन मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास करता है। एजुकेशन मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास करता है। गेम्स आर अ मीन्स ऑफ कीपिंग द बॉडी हेल्दी एंड फिट। और अगर हम गेम्स की बात करें, खेलकूद की बात करें, तो गेम्स क्या करते हैं? गेम्स आर अ मीन्स ऑफ कीपिंग द बॉडी हेल्दी एंड फिट। गेम्स साधन है हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को स्वस्थ और फिट रखने का साधन है, हेल्दी और फिट रखने का साधन है। फिजिकल फिटनेस एंड फ्रीडम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स आर द डिजायर एंड एम्बिशन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। और हर मनुष्य की जो सबसे बड़ी डिजायर होती है, सबसे बड़ी इच्छा होती है, जो सबसे बड़ी चाहत होती है और सबसे बड़ा महत्वाकांक्षा होती है, एम्बिशन होता है, वो होता है कि वो सभी रोगों से मुक्त रहे, उसका शरीर कभी भी रोगग्रस्त ना हो, वो स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, सभी रोगों से मुक्त रहे। ये हर मनुष्य की सबसे बड़ी डिजायर होती है, सबसे बड़ा एम्बिशन होता है। और यहाँ पे जो इस एम्बिशन को, इस डिजायर को पूरा करने में जो रोल अदा करते हैं वो ये गेम्स ही हैं। तो बोला, इंडीड गुड हेल्थ इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ हैप्पीनेस। वास्तव में जो अच्छी हेल्थ होती है, गुड हेल्थ इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ। लाइफ में खुशी प्रदान करने के लिए अच्छी हेल्थ का होना सबसे बड़ी आवश्यकता है। बिना अच्छी हेल्थ के हमारे जीवन में खुशियां भी आए तब भी हमारे आंतरिक जीवन में एक मातम सा बना रहता है। हमें पता होता है अब ये खुशियां हमारे किस काम की, हमारा शरीर तो इस काम का रहा नहीं। इसलिए गुड हेल्थ का होना बहुत जरूरी है ताकि छोटी सी खुशी को भी आप खुशी के रूप में धारण कर सकें। इसके लिए गुड हेल्थ का होना बहुत जरूरी है। तो आपसे कहा गया है कि इंडीड गुड हेल्थ इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ। दोज हु प्ले गेम्स जनरली मेंटेन गुड हेल्थ। जो लोग गेम्स प्ले करते हैं, जो लोग खेलों को खेलते हैं, उनकी हेल्थ मेंटेन रहती है, उनकी गुड हेल्थ हमेशा मेंटेन रहती है, उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। गेम्स आर एन एक्सीलेंट मीन्स ऑफ बॉडीली एक्सरसाइज। और जो गेम्स होते हैं वो हमारी बॉडीली एक्सरसाइज के, हमारे शारीरिक व्यायाम के एक अच्छे स्रोत हैं, एक अच्छे साधन हैं। वेदर इट इज सोफिस्टिकेटेड गेम्स लाइक हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस और simpler games like kabaddi, they all provide the much needed exercise to the body and thus keep the body healthy and strong. ये गेम्स चाहे विशुद्ध गेम्स हों जिनसे हमारे शरीर को खूब मजबूती, एक्सरसाइज और ताकत मिलती है, जैसे कि ये हो गए हॉकी हो गया, ठीक है, फुटबॉल हो गए या टेनिस हो गए, इस टाइप के गेम्स, या फिर सिंपलर गेम्स हों जैसे कि कबड्डी, किसी भी टाइप के गेम्स हों, इनसे हमारी बॉडी की अच्छी एक्सरसाइज होती है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है और हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्ट्रांग बनते हैं।
Players always have a better appetite and a better digestion than those who play no games or take no exercise. वो लोग जो कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते या किसी भी प्रकार का गेम नहीं खेलते, उन लोगों की तुलना में जो प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं जो गेम्स को खेलते हैं, उनका शरीर का जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा होता है और उनको बहुत अच्छी भूख भी लगती है. गेम्स नॉट ओनली मेक द बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रांग, दे ऑल्सो मेक इट मस्कुलर. गेम्स होते हैं वो हमारी बॉडी को ना केवल हेल्दी और स्ट्रांग रखते हैं बल्कि मस्कुलर बॉडी भी रखते हैं, मसल्स वाली बॉडी भी रखते हैं. अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग द बॉडी, गेम्स आर एन एक्सीलेंट रिक्रिएशन और पास टाइम. हमारी बॉडी को बिल्ड करने के साथ साथ गेम्स हमारा अच्छा मनोरंजन भी करता है, सबसे बेहतर मनोरंजन का साधन भी है और सबसे अच्छा पास टाइम का साधन भी है. एजुकेशन टीचेज पीपल द नीड एंड वैल्यू ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज. जो एजुकेशन है यानी शिक्षा हमें मनोरंजन के मूल्यों को, मनोरंजन के गुणों को बताने का काम करता है. मनोरंजन के मूल्यों की क्या आवश्यकता है, मनोरंजन की कितनी आवश्यकता है एक मनुष्य के जीवन में, इसको बताने का काम एजुकेशन करता है. एजुकेशन डज नॉट अप्रूव ऑफ द बुक वर्म हु इज लॉस्ट इन बुक्स ऑल द टाइम. जो लोग हमेशा बुक्स में खोए रहते हैं, तो एजुकेशन वो नहीं है. एजुकेशन ये नहीं कहती कि आप एक बुक वर्म बन जाए, एक किताबी कीड़े बन जाएं और बुक में डूबे रहकर अपने आप को बर्बाद कर लें, अपनी हेल्थ को बर्बाद कर लें, अपने शरीर को खोखला बना लें. नो, एजुकेशन का मतलब है आप हर चीज़ को आपके अंदर एक समझ पैदा हो जाए जिससे कि आप जिस भी काम को करें उसे बेहतर तरीके से कर सकें. ये है एजुकेशन. एक अंडरस्टैंडिंग पावर को इंक्रीज करना एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है. आगे आपसे कहा गया है कि एंड गेम्स आर अमंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग रिक्रिएशंस इन द वर्ल्ड. पहले आपसे समझाएगा कि रिक्रिएशन इज नेसेसरी. मनोरंजन आवश्यक है. रिक्रिएशन नेसेसरी है, मनोरंजन आवश्यक है. एंड गेम्स आर अमंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग रिक्रिएशन इन द वर्ल्ड. और वर्ल्ड में जितने भी रिक्रिएशंस हैं, जितने भी मनोरंजन हैं या मनोरंजन के साधन हैं, उन सभी मनोरंजन के साधनों में से गेम्स सबसे बेहतर, सबसे उत्तम मनोरंजन का साधन है. क्योंकि ये हमें मनोरंजन देने के साथ साथ हमारा जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर बनाने का काम करता है. और ये एक ऐसी कठिन एक्सरसाइज होती है, एक कठिन कार्य होता है जिसको करते समय चाहे कितनी भी कठिनाई से उस काम को हम कर रहे हो, हमें खुशी ही मिलती है. उसे हम बोझ समझ के नहीं करते. इसलिए इसे सबसे अच्छा मनोरंजन का साधन कहा गया है. आगे आपसे बताया गया है कि द एसेंस ऑफ रिक्रिएशन इज दैट इट रिफ्रेशेस both body and mind and provides a means of escape from one's professional or scholarly pursuits. जो रिक्रिएशन का सार होता है वो यह होता है कि यह हमारी बॉडी को और माइंड को रिफ्रेश करता है, तरोताज़ा करता है और हमें हमारे प्रोफेशनल और बौद्धिक खोजों की ओर जो हम जा रहे होते हैं वहाँ से थोड़ी देर के लिए अलग कर देता है, हमें बचाता है और हमें खुशियाँ प्रदान करता है. Thus, games are very useful as a diversion for the mind. इस प्रकार हमारे माइंड को डाइवर्ट करने के लिए गेम्स यानी हमारे माइंड को एक प्रकार से खुशी प्रदान करने के लिए, अपने जो बोझ भरे काम हैं वहाँ से हटाकर रिफ्रेश करने के लिए सबसे अच्छा साधन है, मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन है. और एजुकेशन का यही मतलब है कि हम हर चीज़ को इस तरीके से करें जिससे कि अपने आप को बेहतर बनाएं और अधिक बेहतर बनाएं और अधिक मजबूत बनाएं, ताकि हर सिचुएशन में अपने आप को बिल्ड कर पाएं, अपने आप को वहाँ खड़ा कर पाएं और मजबूती से अपने आप को इस तरीके से रख पाएं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ पाएं.
इसके लिए ज़रूरी है कि हम अधिक से अधिक एजुकेशन गेन करते रहें, अधिक से अधिक नॉलेज गेन करते रहें, ताकि कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल पाएँ। और अधिक से अधिक नॉलेज गेन करने के लिए इस शरीर का अच्छा होना ज़रूरी है, और इस शरीर के अच्छा होने के लिए गेम्स की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जो गेम्स होते हैं जिनसे कि आपकी बॉडी की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, उन गेम्स को खेलिए। बंद कमरे में बैठकर एक जगह आराम से, जो आपको क्या करता हो, लग्जरी लाइफ प्रोवाइड करवाता हो, ऐसे गेम्स को खेलने से आपका शरीर बेकार होगा, अच्छा नहीं होगा। इसलिए अपने कमरे से बाहर आएं और कठिन परिस्थितियों में गेम्स को खेलकर अपने आप को स्ट्रांग बनाने का काम करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।